السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی تیاری کر رہے ہوں گے۔ ساتھیوں، میں جنید رضا آپ تمام ساتھیوں کا اپنے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ ساتھیوں، میں آج کے کلاس کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کو پھر وہی شعر یاد دلانا چاہوں گا۔ نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا۔ ساتھیوں، اس سے پہلے کے ویڈیو میں نے آپ کو جملہ سے روبرو کرایا تھا، جملہ کے اقسام کے بارے میں بتایا تھا، ساتھیوں جملے کی تعریف بتایا تھا۔ ساتھیوں، جملے کے بارے میں اس ویڈیو میں مکمل طور پر واضح نہیں کر سکا تھا۔ ساتھیوں، اس سے پہلے کے کلاس میں نے آپ کو جملے کے بارے میں بتایا تھا، جملے کی قسمیں بتایا تھا۔ ساتھیوں، جملے کے اجزاء کے بارے میں بتایا تھا۔ ساتھیوں، جملے کے اجزاء کے بارے میں بتایا تھا، جیسے مبتدا خبر، جیسے مبتدا اور خبر۔ ساتھیوں، اسی طریقے سے میں آج آپ کو جملے کے سارے اقسام جو میں نے اس سے پہلے کے کلاس میں نہیں بتایا تھا۔ ساتھیوں، اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے آپ کو جملے کے بارے میں بتایا تھا، ان کے کچھ اقسام کے بارے میں بتایا تھا۔ ساتھیوں، جملے کا جو چیپٹر تھا یہ بڑا ہونے کی وجہ سے میں نے اس ویڈیو کے اندر میں مکمل طور پر واضح طور پر ساتھیوں جملے کے بارے میں نہیں بتا سکا تھا۔ ساتھیوں، ان کے جو بھی اقسام بچے ہوئے تھے آج کے کلاس میں، ساتھیوں آج کے ویڈیو میں مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھیوں، میں امید کروں گا آپ سے انشاءاللہ العظیم آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں گے، دیکھیں گے۔ ساتھیوں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر پہلی مرتبہ جڑ رہے ہیں تو ساتھیوں میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، ساتھیوں آپ ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں ساتھیوں، اور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید لوگ اس سے فوائد حاصل کر سکیں۔ ساتھیوں، میں آج کے کلاس کو شروع کر رہا ہوں، اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس عبارت پر غور کریں، آؤ اردو سیکھیں اور سکھائیں۔ ساتھیوں، آؤ اردو سیکھیں اور سکھائیں۔ ساتھیوں، ہمارا یہ فرض ہے کہ جو بھی علم ہمارے پاس ہے ہم آپ تک پہنچائیں، آپ کے پاس جو علم ہے آپ اوروں تک پہنچائیے۔ ساتھیوں، اسی کڑی میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آؤ اردو سیکھیں اور سکھائیں۔ ساتھیوں، دنیا کی مقبول ترین زبانوں میں اردو کو شمار کیا جاتا ہے۔ ساتھیوں، اردو محبت کی زبان ہوتی ہے، ساتھیوں اردو پیار کی زبان ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اردو کو سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ ساتھیوں، اردو قواعد کے اندر میں نے آپ کو جملہ کے بارے میں کل کے ویڈیو میں بتایا تھا۔ ساتھیوں، اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے آپ کو جملہ کے بارے میں بتایا تھا، ان کے کچھ اقسام کے بارے میں بتایا تھا، جملے کی تعریف بتایا تھا۔ ساتھیوں، NCERT کے اندر میں جملے کے دو قسم ہوتے ہیں، ایک مفرد اور دوسرا مرکب۔ ساتھیوں، میں آپ کو جو بھی بتا رہا ہوں ساتھیوں سارا مواد NCERT پر مشتمل ہوتا ہے۔ ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں جملے کے بارے میں نے بتایا تھا، جملے کی تعریف بتایا تھا۔ ساتھیوں، آج میں آپ کو جملے کے اقسام کے بارے میں بتاؤں گا۔ ساتھیوں، جملہ کسے کہیں گے؟ الفاظ کا وہ مجموعہ، الفاظ کا وہ مجموعہ، لفظوں کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح ہو جائے، جن سے بات مکمل واضح ہو جائے، پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے، ساتھیوں وہی جملہ ہے۔ ساتھیوں، جملہ کو مرکب تام کہتے ہیں، ساتھیوں جملہ کو مرکب تام کہتے ہیں۔ الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح نہیں ہو، ساتھیوں الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح نہیں ہو، ساتھیوں اسے ہم فقرہ کہتے ہیں، ساتھیوں اسے ہم فقرہ کہتے ہیں، مرکب ناقص کہتے ہیں۔ ساتھیوں، انشاءاللہ العظیم آپ اسی طریقے سے سنتے رہیں گے تو پوری بات سمجھ میں آئیں گی۔ اردو قواعد کے اندر میں ساتھیوں جملہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ساتھیوں، اردو قواعد کے اندر میں آج پھر میں جملہ پر روشنی ڈالوں گا۔ ساتھیوں، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ NCERT کے اندر میں ہی جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اول مفرد جملہ، ساتھیوں اول مفرد جملہ، اور دوم جو ہوتا ہے مرکب جملہ۔ ساتھیوں، دوم مرکب جملہ اسی طریقے سے آپ آئیں گے۔ ساتھیوں، آپ غور سے سنیں گے، جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اول مفرد، دوم مرکب۔ ساتھیوں، جملے کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ساتھیوں جملے کے دو جزو ہوتے ہیں، پہلا مبتدا کہلاتا ہے اور دوسرا خبر کہلائے گا۔ ساتھیوں، جملے کے دو جزو ہوتے ہیں، ساتھیوں جملے کے دو جزو ہوتے ہیں، پہلا مبتدا کہلاتا ہے اور دوسرا خبر کہلاتا ہے، پہلا مبتدا اور دوسرا خبر۔ اسی طریقے سے ساتھیوں میں آپ کو بتاؤں جملے کی 5 قسمیں ہوتی ہیں NCERT کے اندر میں، جملے کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ساتھیوں، جملے کی 5 قسمیں ہوتی ہیں اور جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔
साथियों, अगर इम्तहानात के अंदर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए जुमले की कितनी किस्में होती हैं, तो साथियों मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप 5 को ही चुनेंगे। साथियों वो 5 कौन कौन है उनके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। बयानिया जुमला, साथियों बयानिया जुमला, इनकारिया जुमला, सवालिया जुमला, फिजाइया जुमला, हुक्मिया जुमला। साथियों हुक्मिया जुमला, या साथियों अगर इम्तहानात के अंदर पूछे जाए जुमले की कितनी किस्में होती हैं, तो जुमले की 5 किस्में होती हैं। साथियों अगर फिर पूछा जाए इम्तहानात के अंदर जुमले की कितनी किस्में होती हैं, तो जुमले की 5 किस्में होती हैं। वो कौन कौन है साथियों? बयानिया जुमला, इनकारिया जुमला, सवालिया जुमला, इसी को इस्तफहामिया जुमला कहते हैं, फिजाइया, हुक्मिया जुमला, अमरिया जुमला। साथियों आप गौर से सुनेंगे, जुमले की 5 किस्में होती हैं। बयानिया जुमला, इनकारिया जुमला, सवालिया जुमला, इसका दूसरा नाम है साथियों इस्तफहामिया जुमला, फिजाइया जुमला, हुक्मिया जुमला, अमरिया जुमला। साथियों आप गौर से सुनेंगे कि जुमले की 5 किस्में होती हैं। जुमले की 5 किस्में होती हैं। बयानिया जुमला, इनकारिया जुमला, सवालिया जुमला, इस्तफहामिया जुमला। साथियों इस्तफहामिया जुमला और सवालिया जुमला एक ही है। फिजाइया जुमला, हुक्मिया जुमला, अमरिया जुमला। साथियों अब सवाल है कि बयानिया जुमला किसे कहेंगे? साथियों अब बयानिया जुमला किसे कहेंगे? ऐसा जुमला जिसमें कोई बात बताई जाए। साथियों ऐसा जुमला जिसके अंदर कोई बात बताई जाए उसे हम बयानिया जुमला कहेंगे। आप इस बात को ज़हन में बैठा लें, बयानिया जुमला किसे कहेंगे? साथियों जिस बात से कोई खबर दी जाए। साथियों ऐसा जुमला जिसमें कोई बात बताई जाए। साथियों इस बात को आप अपने ज़हन में बैठा लें कि बयानिया जुमला किसे कहेंगे, इसकी तारीफ क्या होती है, तब इसकी तारीफ होगी। ऐसा जुमला जिसमें कोई बात बताई जाए। साथियों ऐसा जुमला जिसके अंदर कोई बात बताई जाए उसे हम बयानिया जुमला कहेंगे। ऐसा जुमला जिसके अंदर कोई बात बताई जाए उसे हम बयानिया जुमला कहेंगे। इस लिया गया है, आप देखेंगे बयानिया जुमला किसे कहेंगे? ऐसा जुमला जिसमें कोई बात बताई जाए उसे बयानिया जुमला कहते हैं। साथियों ऐसी बात जिससे कोई खबर मिले। साथियों कोई बात बताई जाए, कोई बात वाज़ेह हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे साथियों? बयानिया जुमला कहेंगे। जैसे आप देखेंगे ये फूल खुशबूदार है। साथियों ये फूल खुशबूदार है, यहाँ पर फूल के बारे में खबर दी जा रही है कि फूल के अंदर खुशबू है। साथियों फूल की जो खासियत है, उनकी खुसूसियत है, उनके अंदर सिफत है। साथियों फूल के बारे में बताया जा रहा है कि फूल के अंदर खुशबू है। इसी तरीके से साथियों आगे के जुमला पर आप गौर करेंगे, यह फूल खुशबूदार है। साथियों फूल के बारे में बताया जा रहा है कि इसके अंदर खुशबू है। रौनक नेक सीरत बच्ची है। साथियों रौनक नेक सीरत बच्ची है। रौनक नेक सीरत बच्ची है। साथियों इस जुमला के अंदर रौनक के बारे में बताया जा रहा है कि रौनक कैसी है? नेक सीरत है, उनके अंदर खासियत है। साथियों नेक सीरत। साथियों पत्तों का रंग हरा है। साथियों यहाँ पर पत्ते के बारे में बताया जा रहा है कि पत्तों का रंग कैसा है? साथियों हरा है। साथियों आप जानते ही हैं कि पत्तों का जो रंग हरा होता है। साथियों हमें मालूम है, आपको मालूम है कि पत्तों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। साथियों पत्तों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है रौनक नेक सीरत बच्ची है। रौनक के बारे में बताया जा रहा है कि रौनक नेक सीरत है। साथियों पत्तों का रंग हरा है। साथियों यहाँ पर पत्ते के बारे में बताया जा रहा है कि पत्ते का रंग कैसा है? लाल है, हरा है, नीला है, पीला है, कैसा रंग है? साथियों यहाँ पर तो इसी चीज की खबर दी जा रही है कि पत्तों का रंग बिलखुसूस हरा है। पत्तों का रंग हरा है। साथियों ये बयानिया जुमला की मिसाल है। इसी तरीके से देखेंगे तालाब बहुत गहरा है। साथियों तालाब के बारे में बताया जा रहा है कि तालाब बहुत गहरा है। साथियों तालाब गहरा है। ये साथियों आगे के जुमला पर आप गौर करेंगे, मोती चमकीला होता है। साथियों मोती के बारे में बताया जा रहा है कि मोती चमकीला है। साथियों मोती के बारे में बताया जा रहा है कि मोती चमकीला है। साथियों ये बयानिया जुमला की मिसाल है। सबीला खूबसूरत बच्ची है। साथियों सबीला खूबसूरत बच्ची है। सबीला खूबसूरत बच्ची है। साथियों आप गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम पूरी बात समझ में आएगी। सबीला खूबसूरत बच्ची है। साथियों सबीला के बारे में बताया जा रहा है जुमला के अंदर कि वो कैसी बच्ची है? खूबसूरत है कि बदसूरत है? कैसी है? साथियों खूबसूरत बच्ची है, उनकी खासियत है। साथियों उसके अंदर ये सिफत है। साथियों ये बयानिया जुमला की मिसाल है। सबीला के बारे में खबर दी जा रही है। साथियों फिर से मैं आपको बताऊं बयानिया जुमला किसे कहेंगे? ऐसा जुमला जिसमें कोई बात बताई जाए। साथियों ऐसा जुमला जिसके अंदर कोई बात बताई जाए, जिसके बारे में कोई खबर दी जाए, साथियों उसे हम बयानिया जुमला कहेंगे। साथियों ऐसा जुमला जिसमें कोई बात बताई जाए, जिसमें किसी के बारे में कोई खबर दी जाए, साथियों इसे हम बयानिया जुमला या खबरिया जुमला कहेंगे। ऐसा जुमला जिसमें कोई बात बताई जाए उसे हम बयानिया जुमला कहेंगे। जिसमें किसी के बारे में कोई खबर दी जाए, किसी चीज के बारे में कोई खबर दी जाए, साथियों मैं आपको बताऊं बयानिया जुमला कोई खबरिया जुमला भी कहते हैं। साथियों आप गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम खुदा की जात से उम्मीद करूंगा करता हूं साथियों कि आप समझेंगे। इसीलिए आप गौर से सुनिए बयानिया जुमला किसे कहेंगे? ऐसा जुमला जिसमें कोई बात
بتائی جائے اسے بیانیہ جملہ کہیں گے۔ ساتھیوں بیانیہ جملہ کو ہی خبریہ جملہ بھی کہتے ہیں۔ ساتھیوں بیانیہ جملہ کو ہی خبریہ جملہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر خبر دی جا رہی ہے۔ جیسے یہ پھول خوشبودار ہے، ساتھیوں پھول خوشبودار ہے، پھول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پھول کیسا ہے، ساتھیوں خوشبودار ہے۔ رونق نیک سیرت بچی ہے، ساتھیوں رونق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ رونق نیک سیرت بچی ہے۔ پتوں کا رنگ ہرا ہے، ساتھیوں پتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پتوں کا رنگ ہرا ہے۔ ساتھیوں پتوں کا رنگ کیسا ہے، ہرا ہے۔ اسی طریقے سے تالاب بہت گہرا ہے، ساتھیوں تالاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ساتھیوں موتی چمکیلا ہوتا ہے، ساتھیوں موتی چمکیلا ہوتا ہے، موتی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ موتی کیسا ہے تو چمکیلا ہے۔ ساتھیوں یہاں پر موتی کے بارے میں بتایا گیا، یہ بیانیہ جملہ کی مثال ہے، خبریہ جملہ کی مثال ہے۔ ساتھیوں موتی کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ موتی چمکیلا ہوتا ہے۔ ساتھیوں سبیلا خوبصورت بچی ہے، سبیلا خوبصورت بچی ہے، نیک سیرت بچی ہے۔ ساتھیوں سبیلا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سبیلا خوبصورت بچی ہے۔ ساتھیوں یہ سارے جملے جو میں نے آپ کو ابھی سنایا، ساتھیوں میں نے آپ کو لکھ کے دکھایا ہے، یہ بیانیہ جملہ کی مثال ہے۔ ساتھیوں یہ خبریہ جملہ کی مثال ہے۔ ساتھیوں بیانیہ جملہ کو ہی خبریہ جملہ کہتے ہیں، بیانیہ جملہ کو ہی خبریہ جملہ کہتے ہیں۔ ساتھیوں ان میں کسی بات کا اظہار ہوتا ہے، اسی لیے اسے مثبت جملہ بھی کہتے ہیں۔ ساتھیوں جس جملہ میں کسی بات کی خبر دی جائے، ساتھیوں جس جملہ کے اندر میں کسی بات کا ظاہر ہونا ہوتا ہے، ساتھیوں جس جملہ کے اندر میں کسی بات کا ظاہر ہونا ہوتا ہے اسے مثبت جملہ کہتے ہیں۔ ساتھیوں جس جملہ کے اندر میں کسی بات کا ظاہر ہونا ہوتا ہے، اجاگر ہونا ہوتا ہے، واضح ہونا ہوتا ہے، ساتھیوں اسے ہم مثبت جملہ کہتے ہیں، اسے ہم مثبت جملہ کہتے ہیں۔ ساتھیوں جیسے ان میں کسی بات کا ظاہر ہونا ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں گے یہ پھول خوشبودار ہے، پھول کے بارے میں ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ خوشبودار ہے۔ رونق نیک سیرت بچی ہے، رونق کے بارے میں ظاہر ہو رہا ہے کہ رونق نیک سیرت بچی ہے۔ پتوں کا رنگ ہرا ہے، ساتھیوں پتوں کے بارے میں ظاہر ہو رہا ہے، واضح ہو رہا ہے کہ پتوں کا رنگ ہرا ہے۔ تالاب بہت گہرا ہے، ساتھیوں تالاب کے بارے میں یہاں پر واضح ہے اور ظاہر ہو رہا ہے کہ تالاب بہت گہرا ہے۔ موتی چمکیلا ہوتا ہے، موتی چمکیلا ہے، ساتھیوں موتی کے بارے میں ظاہر ہو رہا ہے کہ موتی کیسا ہے، چمکیلا ہے۔ اسی طریقے سے سبیلا خوبصورت بچی ہے، ساتھیوں سبیلا کے بارے میں ظاہر ہے وہ خوبصورت بچی ہے۔ ساتھیوں ان میں سے اوپر والے جملوں میں سے کسی نہ کسی بات کا ظاہر ہونا ہوتا ہے۔ ساتھیوں اوپر والے عبارت پر آپ غور کریں گے تو اس کے اندر جتنے بھی جملے لکھے گئے ہیں، ساتھیوں ان سارے جملے سے کچھ نہ کچھ بات ظاہر ہوتا ہے، ساتھیوں اسے ہی ہم بیانیہ جملہ کہیں گے۔ ان میں کسی بات کا ظاہر ہونا ہوتا ہے ساتھیوں جملوں کے اندر، اس لیے اسے مثبت جملہ کہیں گے۔ ساتھیوں جس جملہ سے کسی بات کا ظاہر ہونا ہوتا ہے مثبت جملہ کہتے ہیں، مثبت جملہ کہتے ہیں۔ ساتھیوں جن جملوں سے کسی بات کا ظاہر ہونا ہوتا ہے اسے ہم کیا کہیں گے، بیانیہ جملہ کہیں گے۔ ساتھیوں اسے ہم بیانیہ جملہ کہیں گے، مثبت جملہ بھی کہتے ہیں۔ ساتھیوں جس بات سے کسی چیز کا ظاہر ہونا ہوتا ہے، ساتھیوں جس بات سے کسی چیز کا ظاہر ہونا ہوتا ہے اسے ہم مثبت جملہ کہیں گے۔ ساتھیوں یہاں پر جیسے آپ نے دیکھا پھول خوشبودار ہے، پھول کے بارے میں ظاہر ہے کہ پھول خوشبودار ہے، ساتھیوں مثبت جملہ کی مثال ہے۔ رونق نیک سیرت بچی ہے، رونق کے بارے میں ظاہر ہے کہ نیک سیرت ہے، مثبت جملہ کی مثال ہے۔ پتوں کا رنگ ہرا ہے، پتوں کے بارے میں ظاہر ہے کہ پتوں کا رنگ کیسا ہے، ہرا ہے، یہ مثبت جملہ کی مثال ہے۔ تالاب بہت گہرا ہے، تالاب کے بارے میں ظاہر ہے، ساتھیوں یہ تالاب مثبت جملہ کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے موتی چمکیلا ہے، موتی چمکیلا ہوتا ہے، ساتھیوں موتی کے بارے میں واضح ہے کہ چمکیلا ہے، ساتھیوں اسی طریقے سے یہ مثبت جملہ کی مثال ہے۔ سبیلا نیک سیرت بچی ہے، سبیلا خوبصورت بچی ہے، ساتھیوں سبیلا کے بارے میں ظاہر ہے کہ وہ خوبصورت ہے، ساتھیوں یہ مثبت جملہ کی مثال ہے۔ ساتھیوں میں آپ کو بتا دوں بیانیہ جملہ کسے کہیں گے، ساتھیوں بیانیہ جملہ کسے کہیں گے، بیانیہ جملہ کا ہی دوسرا نام خبریہ جملہ ہے۔ ساتھیوں بیانیہ جملہ کو ہی خبریہ جملہ کہتے ہیں، بیانیہ جملہ کو ہی خبریہ جملہ کہتے ہیں۔ ساتھیوں بیانیہ جملہ کو ہی خبریہ جملہ کہتے ہیں، ساتھیوں بیانیہ جملہ کو ہی خبریہ جملہ کہتے ہیں۔ ایسا جملہ جس میں کوئی بات بتائی جائے اسے بیانیہ جملہ کہیں گے، اسی لیے اسے مثبت جملہ کہیں گے۔ ساتھیوں امید کرتا ہوں کہ آپ مثبت جملہ کو، ساتھیوں بیانیہ جملہ کو، خبریہ جملہ کو بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ جملے کی 5 قسمیں ہوتی ہیں ساتھیوں، جس میں نے آپ کو بتایا بیانیہ جملہ، انکاریہ جملہ، سوالیہ جملہ یا استفہامیہ جملہ، فضائیہ جملہ، حکمیہ جملہ، امریہ جملہ۔ ساتھیوں میں ابھی آپ کو بیانیہ جملہ کے بارے میں بتایا، ایسا جملہ جس میں کوئی بات بتائی جائے، ایسا جملہ جس میں کوئی بات بتائی جائے اسے ہم بیانیہ جملہ کہیں گے۔ ساتھیوں ایسا جملہ جس کے اندر کسی کے بارے میں بتائی جائے اسے ہم خبریہ جملہ کہیں گے۔ بیانیہ جملہ کو ہی خبریہ جملہ کہا جاتا ہے۔ ساتھیوں یہ پھول خوشبودار ہے، رونق نیک سیرت بچی ہے، پتوں کا رنگ ہرا ہے، تالاب بہت گہرا ہے، تالاب بہت گہرا ہے، موتی چمکیلا ہوتا ہے، سبیلا خوبصورت بچی ہے۔ ساتھیوں ان میں کسی بات کا ظاہر ہونا ہوتا ہے، اس لیے مثبت جملہ ہے۔ ساتھیوں میں ابھی جملے کی قسموں میں ساتھیوں آپ کو بیانیہ جملہ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ساتھیوں اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کیجئے، ساتھیوں آگے کی کلاس میں انشاءاللہ العظیم اسی بات کو پھر ایک بار دہرا دوں گا۔
साथियों, मैं अभी आपको बयानिया जुमला, खबरिया जुमला, मस्बत जुमला के बारे में बता रहा था। समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करें। साथियों, मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ। साथियों, मैं आप तमाम साथियों के कमेंट को बड़ी गौर से पढ़ता हूँ। साथियों, अगर उसमें कोई ऐसी बात होगी तो मैं आगे की क्लास में साथियों उस पर चर्चा करूंगा। साथियों, मैं अब आपको इनकारिया जुमला के बारे में बता रहा हूँ। साथियों, मैंने अभी आपको बयानिया जुमला के बारे में बताया। साथियों, मैंने अभी आपको बयानिया जुमला के बारे में बताया। अब मैं साथियों आपको इनकारिया जुमला के बारे में बताने जा रहा हूँ। साथियों, अब मैं आपको इनकारिया जुमला के बारे में बताने जा रहा हूँ। इनकारिया जुमला किसे कहेंगे? ऐसा जुमला जिसमें कोई बात मनफी अंदाज से कही गई हो या इनकार किया गया हो, उसे मनफी या इनकारिया जुमला कहेंगे। साथियों, इनकारिया जुमला को मनफी जुमला भी कहते हैं। साथियों, इनकारिया जुमला का नाम मनफी जुमला भी है। साथियों, अब आप गौर से सुनेंगे। इनकारिया जुमला किसे कहेंगे? ऐसा जुमला जिसमें कोई बात मनफी अंदाज में कही गई हो साथियों या इनकार किया गया हो। साथियों, आप गौर से सुनेंगे। ऐसा जुमला जिसमें कोई बात मनफी अंदाज में कही गई हो या इनकार किया गया हो साथियों, या इनकार किया गया हो साथियों, उसे हम मनफी जुमला या इनकारिया जुमला कहेंगे। साथियों, गौर से सुनेंगे आप। ऐसा जुमला जिसमें कोई बात मनफी अंदाज से कही गई हो या इनकार किया गया हो, उसे मनफी या इनकारिया जुमला कहेंगे। जैसे यह फूल खुशबूदार नहीं है। साथियों, मैंने आपको अभी बयानिया जुमला के बारे में बताया। साथियों, मैंने अभी आपको बयानिया जुमले के बारे में बताया। ऐसा जुमला जिसमें कोई खबर दी जाए, कोई बात बताई जाए, उसे हम बयानिया जुमला कहेंगे, उसे हम मस्बत जुमला कहेंगे। साथियों, ठीक इसी का मुतजाद है। साथियों, ऐसा जुमला जिसमें कोई बात मनफी अंदाज में बताई जाए। साथियों, ऐसा जुमला जिसमें कोई बात मनफी अंदाज में बताई जाए साथियों, उसे हम मनफी जुमला या इनकारिया जुमला कहेंगे। ऐसा जुमला जिसमें कोई बात मनफी अंदाज से कही गई हो। ऐसा जुमला जिसमें कोई बात मनफी अंदाज से कही गई हो। ऐसा जुमला जिसमें कोई बात मनफी अंदाज से कही गई हो साथियों, या इनकार किया गया हो, उसे मनफी या इनकारिया जुमला कहेंगे। जैसे यह फूल खुशबूदार नहीं है। साथियों, यहाँ फूल के बारे में बताया जा रहा, खबर भी दिया जा रहा ये फूल खुशबूदार नहीं है। मनफी जुमला के अंदर नहीं लगा हुआ होता है। साथियों, मनफी जुमला के अंदर नहीं का इस्तेमाल किया जाए। इनकारिया जुमला किसे कहेंगे? ऐसा जुमला जिसमें कोई बात मनफी अंदाज से कही गई हो या इनकार किया गया हो, उसे मनफी या इनकारिया जुमला कहेंगे। साथियों, जैसे यह फूल खुशबूदार नहीं है। साथियों, यह फूल खुशबूदार नहीं है, जबकि बयानिया जुमला के बारे में बताया गया यह फूल खुशबूदार है। साथियों, फूल के बारे में खबर दिया गया। साथियों, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। साथियों, आप गौर करेंगे, यह फूल खुशबूदार है। यहाँ पर फूल के बारे में खबर दी गई, खुशबूदार है, खुशबू है फूल के अंदर। साथ यहाँ पर बताया जा रहा कि फूल खुशबूदार नहीं है। साथियों, खबर तो दी जा रही है। साथियों, खबर तो दी जा रही है, लेकिन इसमें खुशबू नहीं है। साथियों, इसमें मनफी अंदाज से कही जा रही है, इसके अंदर खुशबू नहीं है। साथियों, इसी तरीके से रौनक नेक सीरत बच्ची नहीं है। साथियों, नेगेटिव सेंटेंस है। साथियों, नेगेटिव सेंटेंस को ही हम क्या कहेंगे? मनफी जुमला कहेंगे। साथियों, इनकारिया जुमला कहेंगे। साथियों, ये नेगेटिव सेंटेंस है। साथियों, बयानिया जुमला यह फूल खुशबूदार है। साथियों, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। साथियों, आप गौर करेंगे, बयानिया जुमला यह फूल खुशबूदार है, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। साथियों, ऐसा जुमला जिसमें कोई बात मनफी अंदाज से कही गई। साथियों, इनकारिया जुमला किसे कहेंगे? ऐसा जुमला जिसमें कोई बात मनफी अंदाज से कही गई हो या इनकार किया गया हो, उसे मनफी या इनकारिया जुमला कहेंगे। साथियों, ये नेगेटिव सेंटेंस होता है। मैं आपको बताऊं, आप यह गौर से सुनेंगे। इनकारिया जुमला में यह फूल खुशबूदार नहीं है। साथियों, खबर तो दी जा रही है फूल, लेकिन फूल के बारे में बताया जा रहा है कि खुशबूदार नहीं है। सबीला नेक सीरत बच्ची है। साथियों, सबीला नेक सीरत बच्ची है, ये बयानिया जुमला का मिसाल है। बयानिया जुमला के अंदर में सबीला नेक सीरत बच्ची है, जबकि साथियों यही मनफी जुमला या इनकारिया जुमला में जब आता है तो सबीला नेक सीरत बच्ची नहीं है। साथियों, नहीं लग जाता है। साथियों, आप गौर से सुनेंगे, यह फूल खुशबूदार नहीं है। साथियों, लफ्ज नहीं पर गौर कीजिए, यह फूल खुशबूदार नहीं है, लफ्ज नहीं पर गौर कीजिए, ये मनफी है। साथियों, ये मनफी जुमला है। रौनक नेक सीरत बच्ची नहीं है, लफ्ज नहीं पर गौर कीजिए। साथियों, नेक सीरत बच्ची नहीं है। साथियों, लफ्ज नहीं पर गौर कीजिए। साथियों, ये इनकारिया जुमला है, इनकार किया जा रहा है इसके अंदर। साथियों, ये मनफी अंदाज से बात कही जा रही है। साथियों, पत्तों का रंग हरा है, ये मैंने आपको बयानिया जुमला के बारे में बताया, लेकिन साथियों यहाँ पर पत्तों का रंग हरा नहीं है। साथियों, यहाँ पर पत्तों का रंग हरा नहीं है। यहाँ पर मनफी अंदाज से बात वाज़ेह है कि पत्तों का रंग हरा नहीं है, जबकि बयानिया जुमला में वाज़ेह है, जाहिर है कि पत्तों का रंग हरा है। और यहाँ पर साथियों, इस जुमला के अंदर में पत्तों का रंग हरा नहीं है। यहाँ पर लफ्ज नहीं पर गौर कीजिए। तालाब बहुत गहरा नहीं है। साथियों, लफ्ज नहीं पर गौर कीजिए। मोती चमकीला नहीं होता है। साथियों, मोती चमकीला नहीं है। साथियों, जैसे मैं आपको बताऊं, मोती चमकीला है, मोती चमकीला होता है। साथियों, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसे मस्बत जुमला कहेंगे। साथियों, यहाँ पर मोती चमकीला नहीं है। साथियों, मनफी जुमला के अंदर में मोती चमकीला नहीं है। जैसे आप गौर से देखेंगे साथियों, तालाब बहुत गहरा है।
साथियों बयानिया जुमला में पॉजिटिव सेंटेंस में तालाब बहुत गहरा है, जबकि साथियों निगेटिव सेंटेंस के अंदर में इनकारिया जुमला के अंदर में तालाब बहुत गहरा नहीं है, तालाब बहुत गहरा नहीं है, लफ्ज नहीं लग गया साथियों, मोती चमकीला नहीं है। साथियों लफ्ज नहीं पर गौर कीजिए। साथियों इस जुमले में भी खबर दी गई है। साथियों बयानिया जुमला में भी खबर दिया जाता है, इनकारिया जुमला में भी खबर दिया जाता है, लेकिन बयानिया जुमला में पॉजिटिव खबर दिया जाता है और इनकारिया जुमला में साथियों निगेटिव खबर दिया जाता है। आप देखेंगे साथियों इस जुमले में भी खबर दी गई है, इसलिए यह भी बयानिया जुमला है, लेकिन इसके अंदर मनफी कैफियत है। साथियों इसके अंदर में जो है मनफी कैफियत है, यानी किसी बात का न होना जाहिर किया गया है। साथियों इसके अंदर में मनफी कैफियत है। साथियों निगेटिव सेंटेंस है ये। साथियों इसके अंदर में भी खबर दी जा रही है कि फूल तो है लेकिन खुशबूदार नहीं है, फूल तो है लेकिन खुशबूदार नहीं है, जबकि साथियों पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर में बयानिया जुमला के अंदर में फूल खुशबूदार है, सबीला नेक सीरत बच्ची है। इनकारिया जुमला किसे कहेंगे? ऐसा जुमला जिसमें कोई बात मनफी अंदाज से कही गई हो या इनकार किया गया हो उसे मनफी जुमला कहेंगे। साथियों ऐसा जुमला जिसमें कोई बात मनफी अंदाज से कही गई हो या इनकार किया गया हो उसे मनफी जुमला या इनकारिया जुमला कहेंगे। जैसे फूल खुशबूदार नहीं है, रौनक नेक सीरत बच्ची नहीं है, पत्तों का रंग हरा नहीं है, तालाब बहुत गहरा नहीं है, मोती चमकीला नहीं है, लफ्ज नहीं 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 पर गौर कीजिए। साथियों इन जुमले में भी खबर तो दी गई है। साथियों इस जुमले के अंदर में भी साथियों खबर तो दी गई है, इसलिए यह भी जुमला बयानिया जुमला है। जिसके अंदर खबर दी जाए उससे खबरिया जुमला कहेंगे, बयानिया जुमला कहेंगे। साथियों इसके अंदर भी खबर दी गई है, यह फूल तो है लेकिन खुशबूदार नहीं है। साथियों लफ्ज नहीं इनकारिया जुमला बनाता है। साथियों लफ्ज नहीं इस जुमला को इनकारिया जुमला में तब्दील कर दिया है। साथियों आप गौर से सुनेंगे, यह फूल खुशबूदार नहीं है, लफ्ज नहीं को देखिए। साथियों रौनक नेक सीरत बच्ची नहीं है, लफ्ज नहीं पर गौर कीजिए। साथियों पत्तों का रंग हरा नहीं है, लफ्ज नहीं पर गौर कीजिए। तालाब बहुत गहरा नहीं है, लफ्ज नहीं पर गौर कीजिए। मोती चमकीला नहीं है, लफ्ज नहीं पर गौर कीजिए। साथियों ये नहीं लफ्ज जो देख रहे हैं, साथियों ये लफ्ज नहीं जो देख रहे हैं आप, साथियों ये लफ्ज नहीं जो आप देख रहे हैं, यही इस जुमला को इनकारिया जुमला में तब्दील कर देता है। साथियों इस जुमले में खबर तो दी गई है। साथियों इन जुमले के अंदर में खबर तो दी गई है, इसलिए यह भी बयानिया जुमला है। साथियों यह भी बयानिया जुमला है, लेकिन इसके अंदर बात जो कही गई है मनफी अंदाज में कही गई है, इसलिए यह भी बयानिया जुमला है, लेकिन इसके अंदर मनफी कैफियत है, यानी किसी बात का होना जाहिर किया गया है। साथियों यानी किसी बात का होना भी जाहिर किया गया है, ये बयानिया जुमला की मिसाल है। साथियों ये बयानिया जुमला है, इसके अंदर खबर दी गई है, लेकिन साथियों इसके अंदर जो कैफियत है ये मनफी कैफियत है। इसके वजह से ये जुमला जो फूल खुशबूदार होता है साथियों बयानिया जुमला में था, लेकिन साथियों यही जब इनकारिया जुमले में आता है साथियों यह फूल खुशबूदार नहीं है। साथियों यह फूल खुशबूदार है, यह फूल खुशबूदार है, ये बयानिया जुमला की मिसाल है। साथियों खबरिया जुमला की मिसाल है। साथियों पॉजिटिव सेंटेंस है। साथियों यह फूल खुशबूदार है, ये बयानिया जुमला की मिसाल है। यही जुमला जब इनकारिया जुमला के अंदर दाखिल होता है तो यह फूल खुशबूदार नहीं है। साथियों मैं खुदा की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आप बयानिया जुमला को भी बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, इनकारिया जुमला को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों अब मैं आपको सवालिया जुमला और इस्तफहामिया जुमला, साथियों सवालिया जुमला का एक नाम और है जिसे हम इस्तफहामिया जुमला कहते हैं। साथियों फिजाइया जुमला, हुक्मिया जुमला या अमरिया जुमला। साथियों अब मैं आपको सवालिया जुमला के बारे में बताने जा रहा हूँ। साथियों आप इसी तरीके से गौर से सुनते रहें और इस वीडियो को देखते रहें। साथियों मेहनत अगर आप करेंगे दुनिया में नाम होगा, हरगिज कभी अधूरा कोई नाकाम होगा। साथियों मेहनत अगर आप करते हैं तो दुनिया आपको सलाम करती है। साथियों ये दुनिया मेहनत करने वालों को पसंद करती है। साथियों आप मेहनत करेंगे दुनिया में आपका नाम होगा। साथियों निकम्मों को तो उनके माँ बाप भी पसंद नहीं करते हैं, उनके भाई बहन भी पसंद नहीं करते हैं। साथियों मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा, आप जगिए और मेहनत कीजिए। साथियों इंशाअल्लाह अज़ीम जहां तक मुमकिन हो सकेगा मैं आपका साथ दूंगा। साथियों जगिए, मेहनत कीजिए, साथियों मुशक्कत कीजिए। साथियों तपस्या और त्याग से इंसान हर कुछ हासिल कर सकता है। साथियों आप मेहनत कीजिए। साथियों मेहनत करने वाले को हर आदमी पसंद करता है। साथियों अभी कुछ नहीं हुआ है। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से कि आप इस वीडियो को बड़े ही गौर से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। साथियों इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए और सुन रहे होंगे। साथियों मेहनत आप कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीम जहाँ तक मुमकिन होगा साथियों मैं आपका साथ दूंगा। साथियों उर्दू के अंदर में मैं आपको इतना मजबूत बनाऊंगा कि आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आप
पहले क्या जानते थे और इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या जाने। साथियों आप इसी तरीके से देखते रहें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना तो नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह लज़ीम, मैं उम्मीद करता हूँ। साथियों अब मैं आपको सवालिया जुमला या इस्तिफ़हामिया जुमला के बारे में बताने जा रहा हूँ। साथियों आप गौर से सुनेंगे। साथियों मैं अभी आपको इनकारिया जुमला के बारे में बता रहा था। साथियों अब मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप सवालिया जुमला को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। साथियों सवालिया जुमला को इस्तिफ़हामिया जुमला भी कहते हैं। साथियों सवालिया जुमला का नाम, साथियों सवालिया जुमला का दूसरा नाम इस्तिफ़हामिया जुमला है। साथियों मैंने अभी आपको बयानिया जुमला के बारे में बताया, इनकारिया जुमला के बारे में बताया। साथियों अब मैं आपको इस्तिफ़हामिया जुमला, साथियों जिसे सवालिया जुमला कहते हैं, सवालिया जुमला जिसे इस्तिफ़हामिया जुमला कहते हैं, इसके बारे में बता रहा हूँ। साथियों आप गौर से सुनेंगे। सवालिया जुमला या इस्तिफ़हामिया जुमला किसे कहेंगे? सवालिया जुमला या इस्तिफ़हामिया जुमला की तारीफ क्या होगी? ऐसा जुमला जिसमें सवाल किया गया हो, ऐसा जुमला जिसमें सवाल किया गया हो उसे सवालिया जुमला या इस्तिफ़हामिया जुमला कहेंगे। साथियों सवालिया जुमला या इस्तिफ़हामिया जुमला किसे कहेंगे? ऐसा जुमला जिसके अंदर सवाल किया गया हो, कुछ पूछा गया हो। साथियों जिसके अंदर सवाल किया गया हो उसे हम सवालिया जुमला या इस्तिफ़हामिया जुमला कहेंगे। साथियों अगर कोई आपसे पूछे सवालिया जुमला की तारीफ क्या होगी, तब आप बिला झिझक उनसे कह सकेंगे ऐसा जुमला जिसके अंदर सवाल किया गया हो, ऐसा जुमला जिसके अंदर सवाल किया गया हो उसे सवालिया जुमला या इस्तिफ़हामिया जुमला कहेंगे। साथियों आप गौर से सुनेंगे। सवालिया जुमला या इस्तिफ़हामिया जुमला किसे कहेंगे? ऐसा जुमला जिसमें सवाल किया गया हो उसे सवालिया जुमला या इस्तिफ़हामिया जुमला कहेंगे। जैसे क्या ये फूल खुशबूदार है? साथियों क्या ये फूल खुशबूदार है? साथियों मैंने आपको बयानिया जुमला के बारे में बताया था कि यह फूल खुशबूदार है। साथियों वहां पर खबर दिया गया और जाहिर हो गया। साथियों इसी तरीके से मैंने इसी जुमला को मनफी जुमला में बताया था, यह फूल खुशबूदार नहीं है। साथियों खबर तो दी गई कि फूल है, लेकिन साथियों वहां पर मनफी कैफियत जाहिर है। साथियों वहां पर मनफी कैफियत जाहिर है कि फूल खुशबूदार नहीं है। साथियों खबर वहां भी है लेकिन मनफी कैफियत थी। साथियों अब मैं आपको उसी जुमला को सवालिया जुमला या इस्तिफ़हामिया जुमला के अंदर इस्तेमाल करके बताऊं। साथियों जैसे क्या यह फूल खुशबूदार है? साथियों यहाँ सवाल पूछा जा रहा, क्या यह फूल खुशबूदार है? क्या रौनक नेक सीरत बच्ची है? साथियों पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। क्या आप पढ़ रहे हैं? क्या आप लिख रहे हैं? साथियों यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, क्या रौनक नेक सीरत बच्ची है? क्या सबीला नेक सीरत बच्ची है? क्या सरफराज पढ़ रहा है? क्या रौनक पढ़ रही है? क्या तुम खेल रहे हो? साथियों यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा, जैसे क्या यह फूल खुशबूदार है? साथियों क्या यह फूल खुशबूदार है? क्या रौनक नेक सीरत बच्ची है? क्या पत्तों का रंग हरा है? क्या पत्तों का रंग हरा है? साथियों सवालिया जुमला या इस्तिफ़हामिया जुमला किसे कहेंगे? ऐसा जुमला जिसमें सवाल किया गया हो, ऐसा जुमला जिसमें सवाल किया गया हो उसे सवालिया जुमला या इस्तिफ़हामिया जुमला कहेंगे। साथियों अगर कोई आपसे पूछे सवालिया जुमला किसे कहेंगे, साथियों सवालिया जुमला की तारीफ क्या होगी, तब आप बिला झिझक कह सकते हैं ऐसा जुमला जिसमें सवाल किया गया हो। साथियों ऐसा जुमला जिसमें सवाल किया गया हो उसे हम सवालिया जुमला या इस्तिफ़हामिया जुमला कहेंगे। साथियों ऐसा जुमला जिसमें सवाल किया गया हो, साथियों ऐसा जुमला जिसमें पूछा गया हो, क्या साथियों जैसे क्या, साथियों ऐसा जुमला जिसमें सवाल किया गया हो उसे सवालिया जुमला या इस्तिफ़हामिया जुमला कहेंगे। साथियों जैसे क्या यह फूल खुशबूदार है? साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। साथियों यहाँ पर सवाल निशान लग रहा है, क्या यह फूल खुशबूदार है? साथियों क्या रौनक नेक सीरत बच्ची है? साथियों सवाल निशान यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। साथियों क्या पत्तों का रंग हरा है? पूछा जा रहा है क्या पत्तों का रंग हरा है? साथियों यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, क्या रौनक नेक सीरत बच्ची है? साथियों इसी तरीके से सवाल पूछा जा रहा है, क्या पत्तों का रंग हरा है? क्या पत्तों का रंग हरा है? सवालिया जुमला। साथियों सवालिया निशान, साथियों सवालिया जुमला की मिसाल है, क्या पत्तों का रंग हरा है? सवालिया जुमला है। क्या तालाब बहुत गहरा है? सवालिया जुमला है। सवाल पूछा जा रहा है साथियों, क्या मोती चमकीला होता है? सवाल पूछा जा रहा है साथियों, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, क्या मोती चमकीला है? क्या पत्तों का रंग हरा है? आपसे पूछा जा रहा है साथियों। कहेंगे ऐसा जुमला जिसमें सवाल किया गया हो उसे सवालिया जुमला या इस्तिफ़हामिया जुमला कहेंगे। साथियों जैसे क्या यह फूल खुशबूदार है? साथियों क्या ये फूल खुशबूदार है? क्या रौनक नेक सीरत बच्ची है? साथियों यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, क्या यह फूल खुशबूदार है? फूल के बारे में पूछा जा रहा है, क्या उसके अंदर खुशबू है? साथियों क्या वो खुशबूदार है? रौनक नेक सीरत बच्ची है। साथियों क्या रौनक नेक सीरत बच्ची है? क्या रौनक नेक सीरत बच्ची है? रौनक के बारे में पूछा जा रहा, क्या वो हकीकतन नेक सीरत बच्ची है? क्या पत्तों का रंग हरा है? पत्तों के बारे में पूछा जा रहा, क्या हकीकतन पत्तों का रंग हरा है? क्या तालाब बहुत गहरा है? क्या तालाब बहुत गहरा है?
साथियों तालाब के बारे में पूछा जा रहा है, क्या हकीकतन तालाब गहरा है? इसी तरीके से साथियों क्या मोती चमकीला होता है? मोती के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, क्या हकीकत में मोती चमकीला होता है? साथियों इस जुमले में कोई बात पूछी गई है। साथियों मैंने जितने जुमले आपको बताया, साथियों इस जुमले के अंदर में सवाल पूछे जा रहे हैं। साथियों ये सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे मैं आपको कह दूं, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने लिखा। साथियों सवालिया जुमला को मैं अपने आम जुबान में बोलूं, जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या आपने नमाज पढ़ी, क्या आपने नमाज पढ़ी। साथियों सवालिया जुमला के बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। सवालिया जुमला किसे कहेंगे? वह जुमला जिसमें सवाल पूछा जाए। साथियों वह जुमला जिसमें सवाल पूछा जाए उसे हम सवालिया जुमला कहेंगे। साथियों जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, मैं आपसे ही पूछूं, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने खाना खाया। साथियों आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं। साथियों आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, आप कौन हो। साथियों ये सारी मिसाल जो जुमला मैं बता रहा हूँ, साथियों ये सवालिया जुमला या इस्तिफहामिया जुमला की है। साथियों अब मैं आपको फिजाइया जुमला के बारे में बता रहा हूँ। फिजाइया जुमला वह जुमला जिसमें किसी जज्बे या फौरी तासुर व कैफियत का इजहार हो, उसे हम फिजाइया जुमला कहते हैं। साथियों आप गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम पूरी बात समझ में आ जाएगी। फिजाइया जुमला किसे कहेंगे? साथियों फिजाइया जुमला किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताऊं। जुमला वह जुमला जिसमें किसी जज्बे या फौरी तासुर व कैफियत का इजहार हो, उसे फिजाइया जुमला कहेंगे। साथियों फिजाइया जुमला किसे कहते हैं? साथियों वह जुमला जिसमें किसी जज्बे या फौरी तासुर व कैफियत का जाहिर होना हो, वह जुमला जिसमें किसी जज्बे या फौरी तासुर व कैफियत का इजहार हो, उसे हम फिजाइया जुमला कहेंगे। साथियों जैसे वाह कितनी अच्छी खुशबू है इन फूलों की। साथियों फिजाइया जुमला किसे कहेंगे? वह जुमला जिसमें किसी जज्बे या फौरी तासुर व कैफियत का इजहार हो। साथियों वह जुमला जिसमें किसी जज्बे, साथियों गौर करेंगे, जिसमें किसी जज्बे या फौरी तासुर व कैफियत का इजहार हो, साथियों उसे हम फिजाइया जुमला कहते हैं। जैसे वाह कितनी अच्छी खुशबू है इन फूलों की। साथियों वाह लफ्ज वाह पर गौर कीजिए। साथियों वाह कितनी अच्छी खुशबू है इन फूलों की। साथियों लफ्ज वाह जो देख रहे हैं फिजाइया जुमला की मिसाल है, माशाअल्लाह। साथियों जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है, जब कोई शख्स अच्छा काम करता है, तो आप कहते हैं खुशी से, आप कहते हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह क्या बात है, बहुत खूब। साथियों ये अल्फाज जो सुन रहे हैं आप, साथियों यही फिजाइया जुमला की मिसाल है। वाह कितनी अच्छी खुशबू है इन फूलों की, लफ्ज वाह पर गौर कीजिए, फिजाइया जुमला की मिसाल है। माशाअल्लाह रौनक नेक सीरत बच्ची है। साथियों जब आपको पता चला कि आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, लिख रहा है, साथियों जब आपको पता चले कि आपके भाई, साथियों जब आपको पता चले कि आपके गांव के लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, तब आप कहते वाह कितनी अच्छी बात है, वाह कितना अच्छा सोसाइटी है। साथियों फिजाइया जुमला किसे कहेंगे, इसकी तारीफ क्या होगी? साथियों वह जुमला जिसमें किसी जज्बे या फौरी तासुर कैफियत का इजहार हो, उसे हम फिजाइया जुमला कहते हैं। साथियों फिजाइया जुमला किसे कहेंगे? वह जुमला जिसमें किसी जज्बे या फौरी तासुर कैफियत का इजहार हो, उसे साथियों फिजाइया जुमला कहेंगे। साथियों वाह कितनी अच्छी खुशबू है इन फूलों की, लफ्ज वाह पर गौर कीजिए। साथियों माशाअल्लाह रौनक नेक सीरत बच्ची है, माशाअल्लाह। साथियों लफ्ज माशाअल्लाह पर गौर कीजिए। साथियों यही आपका फिजाइया जुमला की मिसाल है। साथियों फिजाइया जुमला की मिसाल में माशाअल्लाह शामिल है। इसी तरीके से वाह, साथियों लफ्ज वाह पर गौर कीजिए। इसी तरीके से माशाअल्लाह रौनक नेक सीरत बच्ची है। साथियों नेक सीरत रौनक है, साथियों इसके लिए साथियों माशाअल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं। फिजाइया जुमला की मिसाल है, आह मुझे कांटे चुभ गए। साथियों जैसे ही आपको कांटा चुभ जाता है, साथियों कहीं पर चोट लग जाती है, तो आपके मुंह से निकलता आह। साथियों आप दर्द से कड़ा उठते हैं। साथियों ये लफ्ज आह जो निकलता है फिजाइया जुमला की मिसाल है। साथियों अफसोस कायनात बीमार पड़ गई, अफसोस कायनात बीमार पड़ गई। साथियों कायनात एक बच्ची थी जो बीमार पड़ गई है। जैसे ही आपको खबर मिलती है, आप कहते आह अफसोस वो बेचारी बीमार पड़ गई, वो बच्ची बीमार पड़ गई। साथियों खुशी के मौके पर, साथियों दुख के मौके पर, साथियों कुछ आइन वक्त पर जो आपके मुंह से अल्फाज निकलते हैं, साथियों वो अल्फाज बिलखुसूस होते हैं। साथियों फिजाइया जुमला की मिसाल है। साथियों जैसे आप चल रहे हैं, साथियों आप चल रहे हैं और आपको कांटा चुभ जाता है, तो आप वहां कुछ सोचते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है। साथियों आपके मुंह से एक लफ्ज निकलता है आह। साथियों यही फिजाइया जुमला की मिसाल है। साथियों आप कहीं पर जा रहे हैं, आपको कोई चीज है, कोई सामान है, साथियों बहुत अच्छा लगता, आप कहते वाह क्या खूब, कितना अच्छा सामान है, वाह। साथियों लफ्ज मुंह, आपके मुंह से जो वाह निकलता है, लफ्ज वाह जो निकलता है, साथियों यही आपका फिजाइया जुमला की मिसाल है। साथियों अगर कोई आपको नमाज पढ़ा रहा है, साथियों अगर कोई आपको नमाज पढ़ा रहा है और आप मुक्तदी बने हुए हैं और वो अच्छा किरात कर रहा है, साथियों अच्छा किरात कर रहा है इमाम साहब, तो आप जब नमाज पढ़ के फारिग हो जाते हैं, तो आप कहते हैं माशाअल्लाह क्या आपने नमाज पढ़ाई। साथियों दिल बाग बाग हो गया। साथियों नमाज पढ़ने के बाद दिल को सुकून मिल गया। साथियों आप कहते वाह इमाम साहब। साथियों उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से कि आप फिजाइया जुमला के बारे में भी बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। जैसे
ساتھیوں فضائیہ جملہ کے بارے میں مختصر میں پھر بتا دوں. آپ کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اذان شروع ہو جاتی ہے. ساتھیوں اذان کی آواز جس سے آپ کے کان تک پہنچتی ہے آپ کہتے ہیں الحمدللہ کتنی اچھی آواز ہے, کتنی پیاری آواز ہے. ساتھیوں ماشاءاللہ کیا آواز ہے, کیا ان کا طرز ہے, کیا ان کا لہجہ ہے اذان دینے کا, ماشاءاللہ. ساتھیوں یہ سب جو الفاظ آپ نکال لیتے اپنے منہ سے. ساتھیوں ابھی میں آپ کو فضائیہ جملہ کے بارے میں بتا رہا تھا. ساتھیوں NCERT کے اندر میں جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. NCERT کے اندر میں جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ساتھیوں جملہ مفرد اور جملہ مرکب. ساتھیوں جملہ مفرد اور جملہ مرکب. ساتھیوں پھر NCERT کے اندر میں جملے کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. ساتھیوں NCERT کے اندر میں جملے کی 5 کی قسمیں ہوتی ہیں. ساتھیوں بیانیہ جملہ ساتھیوں اول نمبر میں ہوتا ہے. بیانیہ جملہ 2 نمبر میں ہوتا ہے. انکاریہ جملہ 3 نمبر میں ہوتا ہے. سوالیہ جملہ یا استفہامیہ جملہ اسی طریقے سے 4 نمبر میں ہوتا ہے. فضائیہ جملہ ساتھیوں 4 نمبر میں ہوتا ہے. فضائیہ جملہ ہوتا ہے. فضائیہ جملہ ساتھیوں 4 نمبر میں ہوتا ہے. فضائیہ جملہ اور 5 نمبر میں ہوتا ہے حکمیہ جملہ یا امریہ جملہ. ساتھیوں امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ جملہ کے بارے میں بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے. ساتھیوں میں نے ابھی آپ کو فضائیہ جملہ کے بارے میں بتایا. ساتھیوں اب میں اخیر میں آپ کو حکمیہ جملہ یا امریہ جملہ کے بارے میں بتا رہا ہوں. ساتھیوں حکمیہ جملہ کے بارے میں بتا رہا ہوں. ساتھیوں حکمیہ جملہ کا دوسرا نام امریہ جملہ ہے. ساتھیوں حکمیہ جملہ کا دوسرا نام امریہ جملہ ہے. ساتھیوں حکمیہ جملہ یا امریہ جملہ کسے کہیں گے؟ ایسا جملہ جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہو اسے حکمیہ جملہ یا امریہ جملہ کہیں گے. ساتھیوں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بابو آپ بتاؤ, بہن آپ بتاؤ, وہ حکمیہ جملہ یا امریہ جملہ کسے کہیں گے؟ آپ کا جواب ہونا چاہیے ایسا جملہ جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہو. ساتھیوں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حکمیہ جملہ یا امریہ جملہ کسے کہیں گے؟ ساتھیوں اگر کوئی آپ سے پوچھے حکمیہ جملہ یا امریہ جملہ کسے کہیں گے تب آپ کا جواب ہونا چاہیے ایسا جملہ جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا گیا. ساتھیوں اگر کوئی آپ سے پوچھے حکمیہ جملہ کسے کہیں گے یا امریہ جملہ کسے کہیں گے؟ ساتھیوں ایسا جملہ جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے. ایسا جملہ جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے. ایسا جملہ جس میں سوال پوچھا جائے سوالیہ جملہ کہلاتا ہے. استفہامیہ جملہ کہلاتا ہے. ایسا جملہ جس میں سوال پوچھا جائے ساتھیوں سوال کیا جائے اسے ہم سوالیہ جملہ کہتے ہیں, اسے ہم استفہامیہ جملہ کہتے ہیں. ساتھیوں ٹھیک اسی طریقے سے ساتھیوں آپ غور سے سنیں گے ایسا جملہ جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے ساتھیوں آرڈر دیا جائے نردیش دیا جائے اسے ہم حکمیہ جملہ یا امریہ جملہ کہیں گے. ایسا جملہ جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہو حکم دیا جائے حکمیہ جملہ کہلائے گا ساتھیوں یا امریہ جملہ کہلائے گا. جیسے خوشبودار پھول لاؤ. ساتھیوں میں آپ کو کہوں خوشبودار پھول لاؤ ساتھیوں جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ پھول خوشبودار ہے بیانیہ جملہ ہے. ساتھیوں پھول کے بارے میں واضح ہے ظاہر ہے کہ پھول خوشبودار ہے. اسی جملہ کو میں نے انکاریہ جملہ میں استعمال کیا یہ پھول خوشبودار نہیں ہے. ساتھیوں یہاں لفظ نہیں منفی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے. ساتھیوں لفظ نہیں منفی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے. ساتھیوں خبر تو دی جا رہی ہے کہ پھول ہے لیکن یہ خوشبودار نہیں ہے. ساتھیوں یہاں خبر دی گئی ساتھیوں بتایا گیا خبر دیا گیا لیکن ساتھیوں یہاں منفی کیفیت طاری ہے. ساتھیوں یہاں پر منفی کیفیت ہے یہ پھول خوشبودار نہیں ہے لفظ نہیں جو ہے اس لیے. ساتھیوں اسی جملہ کو میں نے سوالیہ جملہ میں استعمال کیا کیا یہ پھول خوشبودار ہے. ساتھیوں جملہ وہی ہے. ساتھیوں جگہ جگہ پر اس کے معنی آگے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. ساتھیوں ان کے جگہ جگہ پر ان کے معنی اپنے آپ میں بدلتے جا رہے ہیں. کیا یہ پھول خوشبودار ہے؟ ساتھیوں یہاں پر سوال پوچھا جا رہا. ساتھیوں جملہ ایک ہی تھا یہ پھول خوشبودار ہے. ساتھیوں جملہ آگے بڑھتا گیا ساتھیوں اس کے معنی میں تبدیلی آتی گئی. ساتھیوں کیا یہ پھول خوشبودار ہے یہ سوالیہ جملہ ہے. یہ آپ سے سوال پوچھا جا رہا کیا یہ پھول خوشبودار ہے. کیا آپ پڑھ رہے ہیں کیا آپ لکھ رہے ہیں کیا آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کیا اس ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں کیا اس ویڈیو کو سبسکرائب کر رہے ہیں کیا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر رہے ہیں. ساتھیوں یہ سب سوال ہے. ساتھیوں یہ سب سوال ہے جو سوالیہ جملہ ہے. کیا یہ پھول خوشبودار ہے؟ ساتھیوں کیا یہ پھول خوشبودار ہے یہ سوالیہ جملہ ہے یا استفہامیہ جملہ کی مثال ہے. ساتھیوں اب میں اسی جملہ کو ساتھیوں فضائیہ جملہ میں استعمال کرتا ہوں. واہ کتنی اچھی خوشبو ہے ان پھولوں کی. ساتھیوں جملہ وہی ہے اس کے آگے ہم نے واہ لگایا. ساتھیوں اس کے آگے میں نے واہ لگایا. ساتھیوں یہ آپ کا فضائیہ جملہ کی مثال ہے. ماشاءاللہ رونق نیک سیرت بچی ہے. ساتھیوں رونق نیک سیرت بچی ہے اس سے پہلے میں نے ماشاءاللہ کا استعمال کیا. ساتھیوں ماشاءاللہ رونق نیک سیرت بچی ہے. ساتھیوں اس جملہ کے شروع میں ہی میں نے ماشاءاللہ کا استعمال کیا ہے. ساتھیوں یہی لفظ فضائیہ کی مثال ہے. ساتھیوں جملہ فضائیہ کی مثال ہے. ساتھیوں حکمیہ جملہ یا امریہ جملہ یہ جملہ کی 5ویں قسم ہے.
साथियों आखिर किस्म है, मैं आपको बताऊं, हुक्म या जुमला या अमर या जुमला किसे कहेंगे? वह जुमला जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए। साथियों वह जुमला जिसमें किसी काम को करने का हुक्म दिया जाता है उसे हम हुक्म या जुमला या अमर या जुमला कहेंगे। जैसे मैं आपको कहूं एक गिलास पानी लाओ, पढ़ने जाओ। साथियों मैं आपसे कह दूं एक गिलास पानी लाओ, एक बाल्टी पानी लाओ। साथियों मेरी कलम लाओ, मेरी किताब लाओ, मेरी किताब लाओ, पढ़ने जाओ, लिखने जाओ, बैठकर पढ़ो, बैठकर लिखो वगैरह। साथियों जिसमें किसी काम को करने का हुक्म दिया जाए। साथियों खुशबूदार फूल लाओ, रौनक तुम पढ़ने जाओ, रौनक तुम पढ़ने जाओ, सबीला तुम अपनी पढ़ाई करो, सबीला तुम अपनी पढ़ाई करो। साथियों यहाँ पर सबीला से कहा जा रहा है, इनको ऑर्डर दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है कि तुम अपनी पढ़ाई करो, जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करो। साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है कि जुल्म अगर कोई करे, साथियों जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करो, जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करो। साथियों जब हम जुल्म सहते हैं तो जालिमों की मदद होती है, जालिमों की हिम्मत बढ़ जाती है। साथियों हमें चाहिए कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। साथियों उम्मीद करता हूँ खुदा की जात से कि आप को भी अमर या जुमला को भी बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। ऐसा जुमला जिसमें किसी काम को करने का हुक्म दिया गया हो उसे हम हुक्म या जुमला या अमर या जुमला कहेंगे। जैसे खुशबूदार फूल लाओ, तुम रौनक तुम पढ़ने जाओ, सबीला तुम अपनी पढ़ाई करो। साथियों जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करो, जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करो, जोर लगाकर रस्सी खींचो। साथियों यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है, जोर लगाकर रस्सी खींचो। साथियों हुक्म दिया जा रहा है, जोर लगाकर रस्सी खींचो, अपना सबक सुनाओ। साथियों पर हुक्म दिया जा रहा है सबक सुनाने के लिए कि अपना सबक सुनाओ। साथियों एक गिलास पानी लाओ, साथियों एक गिलास पानी लाओ, हुक्म दिया जा रहा है कि एक गिलास पानी लाओ। साथियों किसी से मत लड़ो। साथियों यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है किसी से मत लड़ो। साथियों मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा आप भी किसी से न लड़ें। साथियों आपस में किसी को न लड़ाएं, किसी से मत लड़ो। यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है कि आप किसी से न लड़ें। साथियों हमें भी चाहिए कि हम आपस में न लड़ें। साथियों एक दूसरे को भाई समझें, बहन समझें। साथियों किसी के ऊपर कीचड़ न उछालें, किसी की इज्जत पर साथियों उंगली न उठाएं, किसी की किस्मत पर उंगली न उठाएं। साथियों हमें चाहिए कि हम आपस में मोहब्बत करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। साथियों किसी के खिलाफ न रहें। साथियों जो जुल्म करे, जालिम है, गलत करे, साथियों आप उसके खिलाफ रहिए। साथियों यही तो आपका मजहब आपको सिखाता है, आपको गलत के खिलाफ रहना है। साथियों अपनी अगर कोई गलत करे, साथियों अगर आप उस लायक हैं तो जुबान से भी कहिए, आपस में मोहब्बत करें, आपसी इत्तेहाद इत्तेफाक को बनाए रखें। साथियों पसमानदा तबका से लेकर के आला तबका तक जितने भी लोग आपसे जुड़े, साथियों सबसे मोहब्बत करें। साथियों सबसे मोहब्बत करें, सबके फलाह और तरक्की के लिए, साथियों सबके फलाह बहूद के लिए। साथियों किसी से मत लड़ो। साथियों हमारा मजहब हमें सिखाता है हमें आपस में मिलजुल कर रहना है, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने सूबा की तरक्की के लिए, अपने गाँव की तरक्की के लिए, मोहल्ले की तरक्की के लिए। साथियों हम पढ़ें लिखें और देश को, साथियों अपने मुल्क को और आगे ले जाएं। साथियों यही सबक हमारा मजहब इस्लाम देता है। साथियों हमें चाहिए कि हम आपस में भाईचारे को बना के रखें, इत्तेहाद इत्तेफाक से रहें। साथियों आपसी मोहब्बत को बढ़ाएं, आपसी नफरत को खत्म करें। साथियों जात पात से ऊपर उठकर साथियों जात पात में ना बटें। साथियों हिंदू मुसलमान काला घोड़ा मोटे पतले में ना बटें। कि हमें आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए, किसी से नहीं लड़ना चाहिए। साथियों किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। साथियों जुल्म को नहीं सहना चाहिए। साथियों जब हम जुल्म सहते हैं तो जालिमों की मदद होती है, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। साथियों वो आए दिन साथियों जब हम जुल्म सहते हैं तो जालिमों की मदद होती है, उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। साथियों वो आए दिन जुल्म करते जाते हैं। साथियों ऐसे में जुल्म के फलने फूलने लगता है। साथियों मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा, खुदा की जात से उम्मीद करता हूँ। साथियों उम्मीद करता हूँ खुदा की जात से कि आप जुमला के पांचों अक़साम को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों मैं आपको बताऊं, साथियों आज तक 16 क्लास मुकम्मल हो गया उर्दू कवायद के अंदर में। साथियों 16 क्लास मुकम्मल हो गया उर्दू कवायद का। साथियों उर्दू कवायद के अंदर में मैंने आपको बताया था इस्म और उसकी किस्में। साथियों इस्म और उसकी किस्में, ज़मीर और उसकी किस्में, ज़मीर और उसकी किस्में, फ़ेल और उसकी किस्में, फ़ेल और उसकी किस्में। साथियों सिफत और उसकी किस्में, सिफत और उसकी किस्में। हरुफ के बारे में मैंने आपको बताया। साथियों हरूफ के बारे में बताया, वाहिद जमा के बारे में आपको साथियों समझाया। साथियों जिन्स तज़कीर व तानीस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। साथियों जिन्स तज़कीर व तानीस के बारे में बता चुका हूँ। साथियों मुतरादिफ अल्फाज के बारे में मैंने आपको बताया। साथियों मुतज़ाद अल्फाज के बारे में मैंने आपको बताया। मुरक्कब अल्फाज के बारे में मैंने आपको बताया। साबिक़ा और लाहिक़ा के बारे में मैंने आपको बताया। साथियों साबिक़ा और लाहिक़ा के बारे में मैंने आपको बताया, समझाया। साथियों रोजमर्रा मैंने आपको बता दिया है। साथियों रोजमर्रा किसे कहेंगे? साथियों आप वीडियो को जाके देखिए गौर से, इंशाअल्लाह अज़ीम बात समझ जाएंगे आप। रोजमर्रा के
बारे में मैंने आपको बता दिया, मुहावरा के बारे में मैंने आपको बता दिया साथियों, मुहावरा के बारे में मैंने आपको बता दिया, फिक्रा के बारे में मैंने आपको बता दिया साथियों, जुमला और उसकी किस्में कल के वीडियो में साथियों 15 नंबर वीडियो और 16 नंबर वीडियो में दोनों को जोड़ के साथियों जुमला मुकम्मल हो जाता है साथियों, जिसको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर दिया है साथियों। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैंने साथियों दोनों वीडियो को रिकॉर्ड किया था साथियों। पार्ट 1 और पार्ट 2 से जुमला मुकम्मल हो जाता है साथियों। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो को आप देख लेते हैं तो साथियों उम्मीद करता हूं खुदा की इजाजत से जिंदगी में साथियों, जिंदगी में कभी जुमले के बारे में आपसे अगर कोई पूछ ले तो साथियों आप सोचेंगे नहीं, बिला झिझक बताएंगे उनको साथियों, आप सवाल उनसे पूछेंगे साथियों, वो सवाल आपसे नहीं पूछ पाएगा साथियों। अगर कोई आपसे सवाल पूछने का तालिब भी होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके है साथियों 15 और 16 नंबर वीडियो है साथियों। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे, इस दोनों वीडियो को अगर आप देख लेंगे, गौर से सुन लेंगे साथियों, इंशाअल्लाह अज़ीम खुदा की जात से मुझे इतनी उम्मीद है जुमला के बारे में भूलेंगे नहीं साथियों। आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाएगा साथियों, आप सोच नहीं सकते हैं साथियों, आप जिंदगी में कभी जुमला के बारे में भूलेंगे ही नहीं साथियों। एक से बढ़कर एक जुमला आपके सामने आएगा साथियों, एक से बढ़कर एक जुमला आपके सामने आएगा। आप जुमला को उनके अलग अलग अक़साम में बांट लेंगे और समझ लेंगे साथियों। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं साथियों। मैंने अभी आपको जुमला के सारे अक़साम के बारे में बता दिया साथियों। उम्मीद करता हूं खुदा की जात से कि आप इस वीडियो को बड़े गौर से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे साथियों। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं साथियों, बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों सारे मवाद, सारे वीडियोज आपके लिए काफ़ी अहम है साथियों, काफ़ी मुआलिज साबित होगा साथियों। आपको अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करें साथियों, इंशाअल्लाह अज़ीम मैं आपके सारे कमेंट्स को बड़े गौर से देखता रहता हूँ साथियों। उनको अगले क्लास के अंदर मैं उस चीज़ पर साथियों, जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी साथियों, उस पर मैं बात करूंगा साथियों। मैं आपसे फिर मुआतबाना गुजारिश करूंगा, आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेंगे साथियों, बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे साथियों। अब दीजिए इजाजत, चलता हूं, खुदा हाफिज।